Hello students, how are you? Myself Avik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So today, how are you? All of you. So I think all of you are very fine, and you are actually this practicing and you are studying well. Okay. So just remember one thing: in integration part, we need to practice purportedly so that we can solve different types of questions from integration part, because we are solving this NCERT whole solutions and whole book, okay, and this integration part also, and integration for R.D. Sharma from R.D. Sharma book, okay. So today we are going to discuss very important structures, okay, two important structures from R.D. Sharma book, and in NCERT I think in miscellaneous one or two questions are enlisted, and but in exercise I think you can't see this type of questions, but in a miscellaneous this type of questions are given. So regarding these structures we will solve 2 or 3 questions, and we will think about the structures of these two particular structures, where it can be used and how it can be used, okay. So at first साइड में देखो दो स्ट्रक्चर लिखा गया है, वो दो स्ट्रक्चर जो है आप लोग पेपर में लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, पॉज करके जो है साइड में ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है वो साइड में स्ट्रक्चर जो है वो आप नोट कर लीजिए, ओके। नोट करने के बाद हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो पहला वाला स्ट्रक्चर जो है, इन द फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट यू कैन सी, डिनोमिनेटर पार्ट में कुछ साइन और कॉस स्क्वायर का एक्सप्रेशंस रहेगा, न्यूमरेटर खाली रहेगा, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का कुछ एक्सप्रेशंस रहेगा। तब हम लोग को क्या करना है, ठीक है। तो टाइप वाइज करने से फायदा क्या होता है कि एक एक स्ट्रक्चर देखने से जो पता चलता है कि नहीं, ये जो इंटीग्रेशन है इट माइट बी इन द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड इट कैन बी सॉल्व्ड by following the different process for individual structures also. So and that's why we are solving the integration part structure wise, that means type wise, and after completing all the solutions and all the things, we will choose randomly some questions from the previous year, and we will solve actually this previous year question, 10 years questions also, CBSE, ICC, and for different state boards, okay. And just try to provide me the state board questions also, whatever the board it is. It may be West Bengal board, it may be Assam board, it may be Tripura board, it may be Maharashtra board, it may be Rajasthan board, whatever. That means those who are enlisted and those who are actually viewing my channel, just try to provide me your state board questions, and I will actually provide the solutions also, and I will discuss the questions as well, okay. So just structure आपने लिख लिया है, तो उसी स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग जो पहला स्ट्रक्चर है उसके ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन है, सपोज लिख लो क्वेश्चन, जैसे सपोज देखो क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन dx बाई 4 साइन स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर एक्स 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 9 साइन स्क्वायर एक्स, ओके। सो ये जो पहला स्ट्रक्चर है, फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या था कि डिनोमिनेटर पार्ट में साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का कुछ एक्सप्रेशंस रहेगा, सिर्फ साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का ही एक्सप्रेशंस रहेगा, साइन क्यूब कॉस क्यूब नहीं रहेगा। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, साइन क्यूब कॉस क्यूब नहीं रहेगा, ओके। तो स्क्वायर का ही एक्सप्रेशंस रहेगा। तो हम लोग को क्या करना है, न्यूमरेटर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर को भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना है। बट रिमेंबर वन थिंग, दिस न्यूमरेटर पार्ट शुड बी एम्प्टी, okay. So no other term should be involved in the numerator part as well as in the denominator part also, okay. denominator part में सिर्फ sin square cos square का expressions रहेगा और numerator खाली रहेगा, ठीक है। तब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को numerator को भी cos square से डिवाइड करना है और denominator को भी cos square से डिवाइड करना है। तो अगर मैं denominator को cos square से डिवाइड करूं तो ऐसे ऐसे एक्सप्रेशंस बनता है, देखो तो, हाँ ठीक है। अच्छा फिर
यहां पर आ जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्योंकि 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर एक्स होता है, और यहां पर ये कॉस कॉस कैंसिल, 4 प्लस 9, आई थिंक दिस कैन बी रिटन एज 10 square x. Now in one particular questions you are getting 10x and sec square x part also. So I think this 10x supposed to be substituted, because if you are taking 10x as the substitution, then 10x differentiation is what? Sec square x. Okay, so 10x can be substituted here. That means let 10x equals to z, that means sec square x dx equals to dz. बस हो गया, कितना सुंदर करके आ गए देखो, sec square x dx मतलब dz है, तो ऊपर आप सिर्फ dz लिखेंगे, नीचे 4 प्लस 9 z स्क्वायर। तो यहां पर तो डिनोमिनेटर पार्ट ऐसा कुछ स्ट्रक्चर तो मुझे दिखाई दे रहा है, देखो तो ऐसा, तो ये स्ट्रक्चर कौन सा वाला है? dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये स्ट्रक्चर का आंसर क्या है? 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो यहां पर 1 बाई ए मतलब 1 बाई 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स, ये एक्स है 3z बाई 2 प्लस सी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर दिस क्वेश्चन is here. But remember one thing, if you have the coefficient with your variable, then this coefficient part should be chosen in the denominator part also after this integration part. तो यहाँ पर z के साथ, z यहाँ पर वेरिएबल है, z के साथ कोफिशिएंट क्या है? 3 है, वो कोफिशिएंट पार्ट जो है बाई में आपको लिख लेना है। तो दैट मीन्स अल्टीमेट आंसर क्या आ रहा है? 1 बाई 6 टेन इनवर्स 3z बाई 2 प्लस सी। अब z के जगह वैल्यू जो है वो मतलब बिठा देना है। ओके, z के जगह आप लोग, z के जगह जो सब्स्टिट्यूशन आपने लिया था वही सब्स्टिट्यूशन आप z के जगह बिठा देंगे। दैट मीन्स 1 बाई 6 टेन इनवर्स 3 बाई 2 10 x प्लस सी। ओके, दैट इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो दैट मीन्स यहां पर साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है कि यहां पर डिनोमिनेटर पार्ट में अगर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का एक्सप्रेशन हो तो मुझे सिर्फ कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना है ऊपर और नीचे। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, फिर इसी पैटर्न का और एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, है, वीडियो को पॉज करो, पॉज करके देख लो। थोड़ा हम लोग अभी जो है ना स्पीड बढ़ा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है एग्जाम जो है वो सामने आ रहा है। हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर स्पीड नहीं बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो है सिलेबस कवर करना मुश्किल हो जाएगा। ओके, नाउ दूसरा क्वेश्चन जो है dx बाई 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या है 8 कॉस स्क्वायर एक्स। यहां पर भी देखो न्यूमरेटर खाली है और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का कुछ एक्सप्रेशंस दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इन दैट केस यू नीड टू डिवाइड द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, है कि नहीं? देखो ऐसे करना है, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स और इधर 3 साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 8 कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। अच्छा, dx तो हम लोगों ने लिख ही लिया। सो दैट मीन्स ये जो पार्ट है ये हम लोग सेक्स स्क्वायर एक्स dx लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई ये सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 8 कॉस स्क्वायर एक्स तो कैंसिल ही है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर बोलेंगे सर यहाँ पर तो 10x को तो हम लोग z ले लेंगे, ये तो कंफर्म है, क्योंकि ऊपर सेक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है और 10x का एक्सप्रेशन भी दिखाई दे रहा है। बट ये सेक्स स्क्वायर का क्या करें? यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर पार्ट में सेक्स स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है उसको हम लोग क्या करें? इसको भी रास्ता है 10x में कन्वर्ट करने का। क्लास 10 में एक आइडेंटिटी फॉर्मूला आप लोगों को मिला होगा शायद, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। सो सेक्स स्क्वायर एक्स की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अगर लिखे हम लोग तो लिख सकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पर सेक्स स्क्वायर एक्स dx बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स 3 10 स्क्वायर एक्स प्लस 8। तो क्या बन रहा है? ऊपर सेक्स स्क्वायर एक्स dx आ रहा है डिवाइडेड बाई यहाँ पर टोटल कितना 4
10 स्क्वायर एक्स, ठीक है, 4 10 स्क्वायर एक्स और क्या प्लस 9, 4 10 स्क्वायर एक्स प्लस 9। अब तो साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है कि 10x को हम लोग z लेंगे, वहां से sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू आपको dz मिल जाएगा, बस ऊपर dz बिठाना है और इधर 4z स्क्वायर प्लस 9, दैट मीन्स dz बाई 2z होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट मीन्स 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। और कुछ बाकी है क्या यहाँ पर? हाँ बाकी है, z के साथ जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट आपको नीचे लाना है। और क्यों नीचे लाना है, कैसे नीचे लाना है, एकदम इंटीग्रेशन के बिगिनिंग में हम लोगों ने ये चीज सब चीज हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो आपको सबसे पहले दैट मींस इंटीग्रेशन का जो पहले फर्स्ट लेक्चर से आपको सीरियली आना है। आप सडनली ये लेक्चर देखेंगे तो दिमाग के ऊपर से जाएगा, है कि नहीं? पहले से सब कुछ एकदम सीरियल वाइज आपको देखना है। दैट मीन्स 1/6 tan इनवर्स 2z/3, मतलब यहां पर 2/3 तो है और z के जगह 10x आपको सब्स्टिट्यूट फिर से कर देना है, क्योंकि इंक्लूडिंग z इज आवर assumption, so we can't conclude our answer by using this z. We have to replace the z by the original term. Okay, so तो ये देखो हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर और एक पैटर्न का करते हैं, ठीक है, ये तो हो गया। देखो एकदम सिंपल पार्ट है, एकदम सिंपल एक्सरसाइज है, ठीक है ना? हाँ, बट यही एक्सरसाइज, यही पैटर्न अगर आपको पता ना हो वही आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है ना? देखो आपने ये टाइप कर लिया है, दैट मीन्स ये जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चंस मिलेगा तभी आपको ये कंफर्टेबल फील होगा कि नहीं ये स्ट्रक्चर तो सर ने कराया है, अब ये स्ट्रक्चर तो आराम से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, dx बाई 12 sin x प्लस 3 cos x, 2 sin x प्लस 3 cos x होल स्क्वायर, ठीक है। अब बोलोगे सर यहां पर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्सप्रेशंस नहीं है। अरे भाई होल स्क्वायर तो है कि नहीं? अब होल स्क्वायर को अगर मैं तोड़ूं a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मेशन में, तब क्या मिलेगा आपको? तब तो वही मिलेगा आपको, है कि नहीं? साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का एक्सप्रेशंस नहीं मिलेगा क्या? ऑब्वियसली मिलेगा, होल स्क्वायर तो है। अब a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करने से साइन स्क्वायर का भी एक्सप्रेशन मिलेगा, कॉस स्क्वायर का भी एक्सप्रेशन मिलेगा डिनोमिनेटर पार्ट में, न्यूमरेटर तो खाली है। तो मुझे क्या करना है? डिवाइड करना है, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है, डायरेक्टली डिवाइड मारो, दूसरा और कोई यहां पर थिंकिंग नहीं करना है। पाई कॉस स्क्वायर एक्स, उधर 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स होल स्क्वायर तो है और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। सो ऊपर जो है वो सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा और उधर होल स्क्वायर है ना, 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स बाई कॉस एक्स होल स्क्वायर। सो सेक स्क्वायर एक्स dx बाई नीचे क्या रहेगा? दिस बाई दिस, दैट मीन्स 2 10x प्लस 3 होल स्क्वायर, है कि नहीं? क्योंकि मैंने पूरा दोनों टर्म के ऊपर स्क्वायर था, मैंने होल थिंग स्क्वायर लिख लिया है, तो है कि नहीं? तो यहां पर तो वही 10x दिखाई दे रहा है, सेक स्क्वायर एक्स भी दिखाई दे रहा है, तो बस 10x को सब्स्टिट्यूट करना है और क्या, 10x इक्वल्स टू z, दैट मीन्स सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dz। फिर सो सेक स्क्वायर dz बाई 2z प्लस 3 होल स्क्वायर, बस हो गया। तो यहां पर क्वेश्चन ये है, शुड आई यूज द पावर फॉर्मूला हियर? एंड just before using this power formula or any other thing, you need to think about the structure. And what did I tell you about using the power formulas? So I told you, as so far I remember, that I had told you these things about the structure. So when I think you should use this power formula. Remember one thing, you can use the power formula whenever the term will be in the linear form. Now you tell me 2z plus 3, is it linear? Obviously linear.
ऊपर स्क्वायर है, दैट मीन्स यू कैन यूज द पावर फॉर्मूला ऑल्सो. सो दैट मीन्स ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं 2z प्लस 3 होल टू द पावर माइनस 2 dz. So if you use 2z plus 3 whole to the power minus 2 plus 1 by minus 2 plus 1 plus c. Actually this answer is completed, but one thing is left right now. And what is left here? Just you need to figure out these things. And I told you about this part that if you have any coefficient with your variable part, then this coefficient should be chosen in the denominator part, right? So that means ये होल बाई एक नीचे 2 आएगा. सो दैट मीन्स 1/2 नीचे तो -1 है, 2z मतलब 2 10x प्लस 3 होल टू दी पावर -1 प्लस c. दैट मीन्स -half 2 10x प्लस 3 होल टू दी पावर -1 प्लस c. So that is your final answer. So just remember one thing, if you want to use the power formula in one particular equation, one particular structure, then you need to see the structure very carefully, whether it is in the linear form or not. If it is in the linear form, then you can use the power formula as well. But if actually this given formation is not in the linear form, then you can't choose this power formula. Okay, you need to go for the another structure and another process also. Okay, so ये बात आप लोग थोड़ा याद रखिएगा, फ्यूचर में काम आएगा. ठीक है. नाउ ये इस मेथड का लास्ट एक क्वेश्चन करेंगे. ये लास्ट स्ट्रक्चर, दैट मीन्स लास्ट टाइप बाकी है. dx by 3x plus dx by 3 plus sin twice x. अब बोलोगे सर what type of question it is? There is nothing in the structure. There is nothing in the structure. So how can you use this part? How can you use this structure, whatever is going on right now in this lecture? So remember one thing, if you have this type of question, then with any number, 1 might be in the multiplication form. Surely we can use these things. 3 into 1, in place of 1, can I use sin square x plus cos square x? And sin twice x, as you all know, the formulas to sin x cos x. Now, are you getting the structure of sin square x and cos square x in the denominator part? Are you getting the structure? Yes, we are getting the structure sin square x and cos square x. So we can divide the numerator and the denominator by cos square x according to this structure. So that means dx by cos square x and 3 sin square x plus cos square x divided by cos square x and 2 sin x and cos x by cos square x. So that means sec square x dx 3 ब्रैकेट में आएगा, ये जो है ना एक्सप्रेशन, ये क्या आएगा tan square x, और ये जो एक्सप्रेशन ये क्या आएगा +1, और इधर ये काटेंगे 2 tan x होगा शायद. सो tan x एक्सप्रेशन भी दिखाई दे रहा है, sec square x भी दिखाई दे रहा है. दैट मीन्स वी कैन सब्स्टिट्यूट tan x also. So that means tan x equals to z, sec square x dx equals to dz. Now according to the structure, dz will be in the upper part and 3 z square plus 1 2z. That means dz by 3z square plus twice z plus 1. Now you are getting the quadratic formation in the denominator part. That means which process should be followed now? Method of completing square. So as I told you in the last lectures,
and I think we had discussed this method of completing square also. Okay, so method of completing square जब आप कर रहे हैं तब क्या करना है, dz बाई z स्क्वायर, दैट मीन्स जो स्क्वायर वाला पार्ट है उसके साथ जो कोफिशिएंट है उसको कॉमन लेना है, दैट मीन्स z स्क्वायर प्लस 2z बाई 3 प्लस 1। आप बोलोगे सर 3 रहने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा रे भाई, 3 रख भी सकती हो, यू कैन चूज दिस 3 विद दिस z स्क्वायर पार्ट ऑल्सो, ओके, बट द कैलकुलेशन विल बी इजियर इफ यू टेक कॉमन 3, दैट मीन्स इफ यू टेक this 3 as common. Okay, so it is only for actually this calculation. So 1 by 3 dz by z square plus, कैसे करेंगे, 2ab। देखो तो ये फॉर्मेशन को हम लोग ऐसे सजाएंगे जिससे 2ab फॉर्मेशंस जो है आपको मिल जाए। देखो तो 2a मतलब तो z है, ये तो श्योर है, 2ab, b यहां पर क्या लेना है जिससे ये वाला स्ट्रक्चर आ जाए, 1 by 3। देखो 2z by 3 आ रहा है, तो दैट मीन्स यहां पर b क्या आ रहा है, 1 by 3, दैट मीन्स b स्क्वायर भी वहां पर रहना चाहिए, बट तो है तो नहीं, तो हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे, एक प्लस वाला करेंगे एक माइनस वाला करेंगे, और प्लस 1 तो है ही, तो dz बाई z प्लस 1 by 3 होल स्क्वायर माइनस 1 by 9 प्लस 1, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो अगर मैं माइनस यहां पर कॉमन ले लूं, ये वाला प्लस जो है यहां पर माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स 1 by 3 dz बाई z प्लस 1 by 3 होल स्क्वायर, एंड दिस माइनस साइन 1 by 9 माइनस 1, दैट मीन्स माइनस 8 by 9 है कि नहीं, तो माइनस 8 by 9, तो सामने एक माइनस है, अंदर एक माइनस है, माइनस माइनस प्लस 8 by 9, एंड 8 by 9 उसको अगर मैं स्क्वायर में कन्वर्ट करूं 2√2 by 3 होल स्क्वायर, उसको हम लोग लिख सकते हैं। ओके, सो नाउ यू टेल मी व्हिच स्ट्रक्चर इट इज, व्हिच स्ट्रक्चर इट इज, dx by x square plus s square, 1 by a tan inverse x by a। तो you can use this structure also, okay, so go for the structure, say 1 by a, that means यहाँ पर 1 by 3, 1 by a means 1 by 2√2 by 3 tan inverse x by a, that means z plus 1 by 3 by a means 2√2 by 3 plus c, यहाँ पर ये 3 कैंसिल, 1 by 2√2, और इधर tan इनवर्स ब्रैकेट में z तो मतलब यहाँ पर हम लोगों ने 10x लिया था, तो 10x प्लस 1 by 3 बाई 2√2 by 3, इधर ब्रैकेट क्लोज प्लस c। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सो ऑल ऑफ दिस क्वेश्चंस बिलोंग फ्रॉम द फर्स्ट स्ट्रक्चर, ओके, whatever was written in the PDF format, in this image format, and that was given also in the beginning. So we will go for the second structure. Second structure means, second structure देखो, हम लोग साइड में देखो दिया हुआ है सेकंड स्ट्रक्चर। क्या है सेकंड स्ट्रक्चर, थोड़ा नोटिस करो सेकंड स्ट्रक्चर को, और डिफरेंस, नाउ टेल मी द डिफरेंस बिटवीन द सेकंड स्ट्रक्चर एंड द फर्स्ट स्ट्रक्चर। सेकंड स्ट्रक्चर में क्या, फर्स्ट स्ट्रक्चर में क्या था, नीचे डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का एक्सप्रेशन रहना चाहिए, बट इन द सेकंड स्ट्रक्चर ओनली साइन एक्स कॉस एक्स का एक्सप्रेशन मतलब रहना चाहिए, नो स्क्वायर, नो क्यूब, नो पावर 4, नो पावर 5, ओनली साइन एक्स कॉस एक्स का एक्सप्रेशन होगा, ओके, स्क्वायर का नहीं होगा, ओके। नाउ तो इस टाइप का क्वेश्चंस अगर हम लोग करें, क्या रहेगा, जस्ट सेकंड स्ट्रक्चर जो साइड में लिखा हुआ है ना, वो सेकंड स्ट्रक्चर आप लोग लिख लो कॉपी में सुंदर तरीके से। ये मैंने बुक से डायरेक्ट उठा के मैंने इमेज फॉर्मेट में दे दिया है, ठीक है। आप लोग पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, पॉज करके जो है ना ये देख लो आराम से, ठीक है।
कॉपी में लिख लो। तो उस पैटर्न का अगर मैं क्वेश्चन करूं, dx बाई 1 प्लस dx बाई 1 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर क्या लिखा गया है? अगर डिनोमिनेटर पार्ट में साइन एक्स और कॉस एक्स का एक्सप्रेशन रहे, स्क्वायर का भी नहीं, क्यूब का भी नहीं, पावर 4 का भी नहीं, कुछ नहीं, साइन एक्स कॉस एक्स का एक्सप्रेशन अगर दिखाई दे, तो आप साइन एक्स के जगह कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 2tan x बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। कॉस एक्स के जगह कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये दो फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। फिर उसके बाद जाके आपको 10x बाई 2 को z लेना है, ठीक है। एक एग्जांपल हम लोग करते हैं। ये फॉर्मूला दोनों पता है ना, ये सब मल्टीपल फॉर्मूला है क्लास 11, ठीक है। तो dx बाई ये सब मल्टीपल का फॉर्मूला आप लोग को ये मिला था ना, साइन ट्वाइस एक्स मिला था। ऑब्वियसली साइन ट्वाइस एक्स का फॉर्मूला है 210x बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो अगर यहां पर 2 ना रहे, वहां पर बाई 2 होगा, तो यही फॉर्मूला बन गया ना। देखो तो साइन एक्स इक्वल्स टू 210x बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहां पर 1 प्लस 210x बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो नीचे अगर मैं एलसीएम करूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, इधर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 210 एक्स बाई 2, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। आ गया ना? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, इधर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, इधर 2 ओके। नाउ देखो ये जो पार्ट है ना, ये अगर ऊपर जाए तो क्या होगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 ब्रैकेट के अंदर dx डिवाइडेड बाई, यहां पर तो टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 तो कैंसिल दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो इधर 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 10 एक्स बाई 2। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये तो आइडेंटिटी फॉर्मूला है। तो यहां पर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx बाई 2 कॉमन 1 प्लस टेन एक्स बाई 2 है कि नहीं? तो यहां पर दिखाई दे रहा है कि 10x बाई 2 भी है, सेक स्क्वायर का पार्ट भी है। तो अगर 10 और सेक स्क्वायर एक साथ रहे तो आपको किसको सब्स्टिट्यूट करना है? 10x को सब्स्टिट्यूट करना है। तो 10x बाई 2 को z लेना है और इधर सेक स्क्वायर x बाई 2 हाफ dx इक्वल्स टू dz। दैट मीन्स सेक स्क्वायर x बाई 2 dx इक्वल्स टू 2 इंटू dz। बस हो गया। तो यहां पर आप इंटीग्रेशन में चले जाइए, है कि नहीं? इंटीग्रेशन में चले जाइए। क्या है मतलब z बिठाना है ऐसा कुछ, ठीक है ना? ये डिफरेंशिएशन समझ में आया, है कि नहीं? दैट मीन्स सेक स्क्वायर एक्स, ये जो हाफ है हाफ बाहर रख दो। सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, इसके जगह 2 dz हम लोग लिख सकते हैं बाई 1 प्लस जेड। 2 कैंसिल, दैट मीन्स ओनली dz बाई 1 प्लस जेड। क्या लिखेंगे उसको? डिनोमिनेटर पार्ट में सिर्फ एक लिनियर एक्सप्रेशन है तो उसको कैसे लिखते हैं? लॉग मॉड 1 प्लस जेड। बस हो गया फाइनली। तो दैट मीन्स लॉग 1 प्लस जेड मतलब 10x बाई 2 प्लस सी। बस हो गया फाइनल आंसर। ओके, ठीक है। तो दैट मीन्स यही डिफरेंस होता है ये जो मतलब जो ये क्वेश्चन और पिछले वाले क्वेश्चंस का। तो इस लेवल का और एक क्वेश्चन यहां पर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टॉप कर देंगे। dx बाई
dx बाई एनसीईआरटी में हम लोगों ने 7.5 सॉल्व किया है, मेथड ऑफ ये मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो चल रहा है कि नहीं। बट अकॉर्डिंग टू आर.डी. शर्मा पार्शियल फ्रैक्शन से पहले ये सब स्ट्रक्चर्स है, इसलिए हम लोग ये सब स्ट्रक्चर डिस्कस करके पार्शियल फ्रैक्शन में जाएंगे अकॉर्डिंग टू आर.डी. शर्मा। सो dx बाई 5 + 4 cos x, तो sin x cos x दोनों नहीं है बट cos x तो है, दोनों में से एक रहने से भी हो जाएगा। स्ट्रक्चर देखो जो हम लोगों ने इमेज दिया है आप लोग, वो स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर देखने में क्या हो लग रहा है, दैट मीन सिर्फ cos x सिर्फ sin x रहने से भी आपको वही स्ट्रक्चर फॉलो करना है। दैट मीन्स dx बाई 5 प्लस ये कौन सा cos x का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। दैट मीन्स dx बाई 5 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 4 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। और ये जो है जो एलसीएम वाला पार्ट है वो शायद ऐसे ऊपर चला जाएगा, आई थिंक गलत बोल रहा हूँ क्या, सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 5 प्लस 5 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 4 माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। तो ऊपर जो है सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 5 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, ये क्या होता है, सिर्फ 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 5 प्लस 4 कितना होता है 9। तो dx तो है, बस अभी तो मुझे लग रहा है कि 10x बाई 2 भी है, सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 भी है, तो 10x को z सब्स्टिट्यूट कर देना है। सो दैट मीन्स लेट 10x बाई 2 इक्वल्स टू z, 10x बाई 2 का डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, फिर x बाई 2 का डिफरेंशिएशन हाफ होता है, dx इक्वल्स टू dz। दैट मीन्स सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 dx इक्वल्स टू 2 dz। दैट मीन्स इंटीग्रेशन के अंदर जो सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 dx है इसके जगह 2 इंटू dz बैठेगा और नीचे z स्क्वायर प्लस 9 आएगा, 2 dz बाई z स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। दैट मीन्स 2 बाई 3 tan इनवर्स z मीन्स व्हाट, 10x बाई 3 प्लस c। That is your final answer. And remember one thing, you can't cancel tan inverse and tan here because 1 by 3 is also involved here. Okay, so if this 1 by 3 was not involved in this part, then you could cancel tan inverse and tan as well, but here 1 by 3 is involved, so you can't cancel this tan inverse and tan here because in front of this tan x part 1 by 3 the coefficient is also there, so you can't avoid this coefficient part. Okay, so you can't cancel this tan inverse and tan expressions. So this is your final answer. Okay, so these are the exercise 19.22 and 19.23. Okay, 19.22 and 19.23. These are the questions from these two exercise, and I think 19.21 तक हम लोगों का कंप्लीट था, तो 22 और 23 भी कंप्लीट हो गया है, मतलब इस पैटर्न का क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिया है। ओके, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बाई पार्ट्स में जाएंगे। दैट मीन्स बाई पार्ट्स पता है ना, बाई पार्ट्स है जैसे दो अलग अलग फंक्शंस अगर मल्टीप्लिकेशन में रहे तो जैसे डी डी एक्स ऑफ यू भी फॉर्मूला आपने यूज़ किया था, इंटीग्रेशन में भी यू भी फॉर्मूला होता है, इसलिए इसको बाई पार्ट्स बोला जाता है। पार्ट वाइज यहाँ पर इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स बोला जाता है उसको, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और जस्ट रिमेंबर वन थिंग, वी आर सॉल्विंग all the things, all the concepts, all the topics of integrations for not only for integration, we are solving different concepts from NCERT, from R.D. Sharma, from different reference books, okay, for your better conveniences.
okay, so that you can get this 90% above 95, 96, 19, even 100 also, okay, in my subject. So I am giving a lot of efforts to make you confident in my subjects. So you need to support my channel, and you need to give more and more appreciations, more and more motivations, inspirations through your like. If you like my videos, then please press the like button, and if you like my videos, then subscribe it, and if you had already subscribed, then share this channel with your friends, with your classmates, etc., etc., so that they can enjoy the classes and they can subscribe this channel as well. So thank you very much for joining my classes. Bye and Jai Hind.